Dear speaker and audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I want to give a short speech on the importance of parda. Islamic brothers and sisters, in Jahiliyyah era, women were looked down upon. They had no value, girls were buried alive. When a man heard that a girl was born in his house, he would beat her face. He used to get black with anger. The condition of India was even worse than the time of Jahiliyyah, where dead husbands were burned along with their living wives, and this false ritual was called sati. When Islam came, it increased the value of women, order to respect women, and order to live in well, has highlighted the importance of it. So the saying of the Lord is وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, and stay in your homes and do not remain naked like in the age of ignorance. He has ordered and prohibited tabarruj, that is, he has prohibited the display of adornment and everything that arouses the lust of men. Women used such fine clothes that did not cover the body parts well. When the religion of Islam came, it forbade it and said that women should wear a veil. But alas, in our society the same age of ignorance has returned again. Women use such fine clothes and keep walking in the markets and gatherings with this kind of adornment that God's refuge. Dear listener, estimate the importance of veil from the fact that Allah has ordered to his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ask his wives and daughters to remain well. Among the women of the whole world, they were the purest and most virtuous. They were asked to live in veil and hijab. So we who are immersed in sins these days, are we outside from the order of the veil? Absolutely not. We need to well more. May Allah grant us, all the women of the Islam, to live in well. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil kareem, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ नहीं हूँ आगे के अंजाम से। इलाही ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात ज़ुबान पर जो दिल पर असर करे। मोहतरम सदर मजलिस और सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं पर्दे की अहमियत पर एक छोटी सी तकरीर करना चाहती हूँ। इस्लामिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ज़माने जाहिलियत में औरत को गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। इसकी कोई कदर और कीमत नहीं थी। लड़कियों को जिंदा दफ किया जाता था। जब कोई मर्द ये सुनता था कि उसके घर किसी बच्ची की विलादत हुई है तो उसका चेहरा मारे गुस्से के सियाह हो जाता था। हिंदुस्तान का हाल तो ज़माने जाहिलियत से भी बदतर था। यहाँ मरने वाले शोहरों के साथ उनकी जिंदा बीवियाँ भी जलाई जाती थी और इस बात रस्म को सती का नाम दिया जाता था। इस्लाम आया तो इसने औरत की कदर और कीमत को बढ़ाया, औरत की इज्जत करने का हुक्म दिया, औरत को पर्दे व हिजाब में रहने का आदेश दिया। यकीन मानो औरत की इज्जत पर्दे में रहने में ही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकाम पर पर्दे की अहमियत को उजागर किया है। चुनांचे इरशाद रब्बानी है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा ना रहो। अल्लाह ताला ने आयत के इस टुकड़े में बिनते हवा को घर में रहने का हुक्म दिया है और तबर्रुज से मना फरमाया है, यानी इजहार जिनत और उस चीज से रोका है जो मर्दों के शहवत को उभारे। जिस तरह जमाने जाहिलियत की औरतें बेपर्दा सड़कों और बाजारों में फिरा करती थी और अपने जीनत व महसिन का इजहार करती थी कि गैरों को लुभाए, लिबास ऐसे पहनती थी जिससे जिस्म के आज़ा अच्छी तरह ना ढके। मजहब इस्लाम आया तो इसने इससे मना किया और कहा कि औरत पर्दे में रहे। मगर अफसोस सद अफसोस, हमारे सोसाइटी और समाज में फिर वही जमाने जाहिलियत वाली हालत लौट आई है। औरतें ऐसे बारीक कपड़े इस्तेमाल करती है और इस तरह बनाव सिंगार करके महफिलों और बाजारों में चलती फिरती रहती है कि अल्लाह की पनाह। मोहतरम सामईन, पर्दे के अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि अपने बीवियों, बेटी और आम मोमिन औरतों को पर्दे में रहने के लिए कहे, जो पूरे दुनिया की ख़वातीन में सबसे पाकीज़ा व बाहती और सबसे अफजल थी। उन ख़वातीन इस्लाम को पर्दे में रहने के लिए कहा जा रहा है जो हम आए दिन गुनाहों में डूबे रहते हैं। हम क्या पर्दे के हुक्म से बाहर है? हरगिज़ नहीं, हमें तो और ज़्यादा पर्दा करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब ख़वातीन इस्लाम को पर्दे व हिजाब में रहने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।